students, I am Hina Fatima and I will teach you the subject values, chapter 3rd, a champion in sport and life. This is the second part of the video. Hope you all have seen the first part. In the first part of the video, we started this chapter in which a girl named Deepa Karmakar has a passion of doing gymnastics. During her early childhood, she used to climb here and there, so her family member noticed that she and think that she can do good in gymnastics. So she started her training at the age of 4 or 5. And when she was 8 or 9 years old, she came to know that she has a flat feet, which means flat soles, and the flat soles are not ideal for doing gymnastics and can lead to severe injuries. But by knowing that, Deepa worked even more harder than before and dedicated towards her goal. And during her first gymnastic contest, she doesn't have proper shoes and proper costume, so she borrowed costume from someone else. Now let's start the reading. In 2002, Deepa won her first medal in Agartala and that was when she got her first track suit. तो 2002 में दीपा ने फर्स्ट मेडल जीता अगरतला में और वो पहली बार था जब दीपा ने खुद के लिए एक ट्रैक सूट लिया. ट्रैक सूट क्या होता है स्टूडेंट्स? ट्रैक सूट ट्राउज़र एंड जैकेट फॉर स्पोर्ट्स प्रैक्टिस. तो स्पोर्ट्स प्रैक्टिस के लिए एक पर्टिकुलर ट्राउज़र जैकेट का सेट होता है, उसे ट्रैक सूट कहते हैं. तो in her career, Deepa got the first major breakthrough in 2007 when she won her first medal in the Junior National Championship. Breakthrough means an important development or a change. तो सबसे बड़ा चेंज या डेवलपमेंट उनकी लाइफ में क्या हुआ? इन 2007 में जब उन्होंने पहला मेडल जीता जूनियर नेशनल चैम्पियनशिप में. From there on, she has won about 80 medals at the national and international level. So from there, she won around 80 medals in national and international level. In 2014, Deepa won a bronze medal in the Commonwealth Games. She became the first gymnast in India to have achieved such a great feat for the country. Here, feat means courage. तो जब कॉमनवेल्थ गेम्स हुआ तो 2014 में दीपा won a bronze medal and she became the first gymnast to achieve such a great feat. She was honored with the prestigious Arjun Award in the year 2015 for her spectacular performance. Spectacular means very impressive, शानदार. तो उन्हें एक बहुत ही अनमोल अर्जुन अवार्ड दिया गया 2015 में उनकी शानदार परफॉर्मेंस के लिए. नाउ टर्न टू नेक्स्ट पेज. इन 2016 रियो ओलंपिक्स, दीपा वॉज एट द 4th प्लेस इन द वर्ल्ड चैम्पियनशिप. तो यहाँ पे उन्होंने कौन कौन सी चैम्पियनशिप खेली और क्या क्या विन किया, कौन कौन सी पोजीशन हासिल की, आपको सारी यहाँ पे एक्सप्लेन की जाएगी. तो 2006 में रियो ओलंपिक्स जब हुआ तो दीपा 4th प्लेस पे थी वर्ल्ड चैम्पियनशिप में. इन द फाइनल शी मिस द ब्रॉन्ज मेडल बाय द स्लाइटेस्ट मार्जिन ऑफ 0.150. स्लाइटेस्ट मीन्स वेरी लिटिल. तो दीपा जो है 4th पोजीशन पे आई. जो 3rd पे आते हैं उन्हें ब्रॉन्ज मेडल मिलता है, तो वो बिल्कुल हल्के से मार्जिन से रह गई थी. और वो मार्जिन क्या था? 0.15. कितना कम मार्जिन था ये? तो वो 4th पोजीशन पे आई. In this competition, she performed extremely difficult Produnova vault, which is considered to be so dangerous that it is named as death vault. तो चिल्ड्रेन, कोई भी गेम या स्पोर्ट्स होती है तो उनके अलग अलग शॉट्स या अलग अलग पोजीशंस वॉल्ट्स होते हैं. तो उन्होंने अपने कंपटीशन में एक बहुत ही डिफ़िकल्ट प्रोडोनोवा वॉल्ट कहलाता है, या फिर वो इतना डिफ़िकल्ट होता है कि उसे डेथ वॉल्ट भी कहते हैं, उन्होंने वो परफॉर्म किया था. एंड शी मैनेज टू परफॉर्म दिस टू परफेक्शन. और बहुत ही परफेक्शन, बहुत ही सफाई के साथ इसे परफॉर्म किया था.
Even though she could not win any medal here, her achievement not just made her famous all over the country, but also got appreciation from the great champions and leaders like Prime Minister Narendra Modi, Bharat Ratna Sachin Tendulkar, the great Amitabh Bachchan, and the country's only Olympic gold medalist Abhinav Bindra. तो इसमें वो फोर्थ आ गई थी, उन्होंने तो कोई मेडल जीता नहीं, लेकिन उसके बावजूद जो उनकी एफर्ट्स थी उसकी वजह से ऑल ओवर कंट्री उनको बहुत तारीफ मिली, अप्रिसिएशंस हुए उनके, और बहुत सारे ग्रेट चैम्पियन और लीडर जैसे कि प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी, सचिन तेंदुलकर, अमिताभ बच्चन और द ओनली ओलंपिक गोल्ड मेडलिस्ट अभिनव बिंद्रा, इन लोगों ने दीपा की बहुत तारीफ की. After the Rio Olympics, Deepa is struggling with ligament injuries. Ligament means a strong bond of tissue that hold bones. तो रियो ओलंपिक्स के बाद उनके कुछ लिगामेंट इंजरीज हो गई थी. As a result, she could not get back to the 21st Commonwealth Games held in Australia's Gold Coast. और इस रीज़न की वजह से, इस इंजरी की वजह से जो 21st कॉमनवेल्थ गेम हुआ था ऑस्ट्रेलिया गोल्ड कोस्ट, उसमें वो पार्टिसिपेट नहीं कर पाई. बट दिस ईयर in July, she made a great comeback by winning gold in vault competition at the FIG Gymnastics World Challenge Cup in Turkey's Mersin. लेकिन उसके बाद इस साल उन्होंने एक कमबैक किया, फिर से वो वापस अपने फॉर्म में आई और गोल्ड हासिल किया वॉल्ट कंपटीशन में, जो कि टर्की के मर्सिन में हुआ था. She is currently participating in the 18th Asian Games, but due to knee injury she could not participate in the final of artistic team competition. और वो करेंटली 18th एशियन गेम्स में पार्टिसिपेट करी, बट उनकी नी में कुछ इंजरी हो गई है, जिसकी वजह से वो फाइनल आर्टिस्टिक टीम कंपटीशन में पार्टिसिपेट नहीं कर पाई. Although in the same contest with a score of 11.850, she got the third position qualifying for the balance beam finals. और उसी कॉन्टेस्ट में जिसमें उनका स्कोर 11.850 रहा, उनकी थर्ड पोजीशन आई थी बैलेंस बीम फाइनल्स में. Deepa has been injured before, but she never backs down. Now she is 24 years old and the dream of winning the gold medal is still shining bright for her. तो दीपा की बहुत सारी इंजरीज हुई, लेकिन वो कभी पीछे नहीं हटी, और अब वो 24 इयर्स की हो चुकी हैं, और उनका जो ड्रीम है गोल्ड मेडल जीतने का, वो अभी भी वो ड्रीम बिल्कुल ब्राइट शाइन कर रहा है. तो चिल्ड्रेन, आपने स्टोरी में देखा कि कैसे दीपा कर्माकर की लाइफ में डिफ़िकल्टीज़ आई, कभी हारी कभी जीती, लेकिन कभी भी उन्होंने अपने गोल से अपने कदम पीछे नहीं हटाए, और अभी भी वो गोल्ड मेडल जीतने की ही ड्रीम को देख रही हैं. पॉइंट्स टू पॉन्डर. There is going to be anxiety about uncertainty and fear about falling. But push yourself to keep going. After all, you will never know how close you are to success. If you quit, always remember, winners never quit and quitters never win. तो यहाँ पे एक आपके लिए बहुत ही अच्छी बात लिखी गई है. तो सबसे पहले जान लीजिए कि एंजाइटी का मतलब क्या होता है. एंजाइटी मतलब डर, भय कि फ्यूचर में क्या होने वाला है, और अनसर्टेनिटी मीन्स डाउट, शंका, आशंका. तो अगर आपके मन में डर या भय है या कोई डाउट है कि आप गिर जाएंगे या आप लूज़ करेंगे, बट उसके बावजूद यू हैव टू पुल योरसेल्फ टू कीप गोइंग. आफ्टर ऑल, आपको कभी ये नहीं पता होगा कि आप जीत से कितने दूर हो. अगर आप जीतने से पहले ही क्विट कर दोगे कि मुझसे नहीं होगा, मे बी आपसे नेक्स्ट टर्न में हो जाए, तो जब तक आप कोशिश नहीं करोगे आपको नहीं पता चलेगा कि आप हारोगे या जीतोगे. ऑलवेज रिमेंबर, विनर्स नेवर क्विट एंड क्विटर्स नेवर विन. हमेशा याद रखना चाहिए, जो विनर होते हैं वो कभी क्विट नहीं करते, और जो क्विटर्स होते हैं मीन्स जो पहले ही डर से छोड़ देते हैं किसी काम को, वो कभी जीत नहीं सकते. नाउ टेक अ प्लेज. आई विल ऑलवेज कीप ट्राइंग टिल आई सक्सीड. क्या प्लेज लेना है कि मैं हमेशा कोशिश करता रहूँगा जब तक मैं सक्सीड ना कर पाऊँ, सक्सेस ना कर सकूँ. As I know that the failures are the stepping stones to success and struggles make us stronger, I will never be a quitter. और मुझे ये बात पता है कि ये जो फेलियर्स होते हैं ये बीच में
छोटे छोटे पत्थर या ऑब्स्टिकल होते हैं हमारे सक्सेस के लिए, और यही स्ट्रगल हमें और मजबूत बनाता है, और मैं कभी हार नहीं मानूंगा या मानूंगी। सो दिस वाज योर स्टोरी।